Good morning, students. Today we have to discuss about osmosis and osmotic pressure. So what is osmosis here? Osmosis is the flow of solvent from the solution of lower concentration to solution of higher concentration. So if we are taking two solutions here, for example I am saying, and we need one semi-permeable membrane. So this solution is of higher concentration and this solution is lower concentration. Okay, you can understand by this diagram also. So this is of higher concentration, this is of lower concentration, and here it is called semi permeable membrane. Okay, so this is called semi permeable membrane. This membrane is separating these two solution. And now what is osmosis? Now that is called the movement, or we can say the flow of the solvent. So who is solvent here? Solvent is water. मान लो water and inside the salt या water sugar is there. So the water, the solvent will be passing from its higher concentration to its lower concentration, or in another term what you can say, now solvent is flowing from the solution of lower concentration to solution of higher concentration. Okay, so this is called osmosis, and the pressure which is created due to this osmosis is called the osmotic pressure. Okay, so now again we are coming here. So from solution of lower concentration to solution of higher concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis. Okay, and what is osmotic pressure? The hydrostatic pressure which develops on account of osmosis. Osmosis के थ्रू जो प्रेशर डेवलप होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. And the excess pressure that must be applied on the solution to prevent the osmosis is called the osmotic pressure. मान लो if we are showing one diagram here, so here one solvent is here and solution is here. So when we are separating them by a semi-permeable membrane, so definitely what is happening, this is called semi-permeable membrane. Then what is happening, now the water, that means solvent, will be passing from where to where? From the water will be flowing from solvent to solution. सीधी सी बात है. अभी इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो, ड्यू टू दैट the solvent is now stop flowing from where to where? From solvent to solution. This pressure is called the osmotic pressure, and it is represented by which one? Pi. समझ में आई? The excess pressure which prevent, अगर normal pressure दोनों के ऊपर है तो normally the solvent will be flowing from solvent to solution. But if we are applying some excess pressure due to which the solvent will stop flowing from solvent to solution, or from the lower concentrated solution to higher concentrated solution, that pressure is called the osmotic pressure. अभी समझ में आया? And it is represented by pi. Okay, so now it is coming, osmotic pressure is directly, osmotic pressure किसको बोलेंगे? Now the excess pressure that must be applied on the solution to prevent the osmosis is called the osmotic pressure. आपको किसके ऊपर अप्लाई करना है? सॉल्यूशन के ऊपर, नॉट ऑन द सॉल्वेंट. मतलब जहाँ से जहाँ फ्लो हो रहे उस साइड में अगर आप एक्सेस प्रेशर डालोगे तो ये फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर. Okay, actually now osmotic pressure is directly proportional to which one? Concentration, and that is called molarity. ये याद रखना. Now we are using the concentration, that is not molality, that is molarity. That means moles per liter solution. पहले हम लोगों ने कौन सा यूज किए थे? That was molality in elevation of boiling point and depression in freezing point में. ठीक है. Now we are coming about the molarity here. So pi equals to, pi is directly proportional to what you can write down here? Pi is directly proportional to C. C का मतलब क्या है? concentration. So अगर आप इक्वल साइन दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? CRT. ठीक है. CRT मतलब क्या है? C मतलब क्या है? N2 by V. N2 का मतलब क्या है? moles of the solute per liter solution into R into T. So pi into V equals to what you can write down? N2 RT.
और N2 का मतलब क्या है, W2/M2। M2 का तक क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू R इंटू T। सो अगर M2 अगर आपको लेना है तो क्या करोगे आप, W2 इंटू RT/πV। So this is the formula by which you can get which one, molecular mass of which one, or molar mass of the solute also. The osmotic pressure is used to determine, किस लिए हम यूज़ करते हैं, मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्योंकि ये जो पॉलीमर्स होता है सॉल्युबिलिटी अगर लेस हो, है ना, एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के हिसाब से भी ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूज़ करते हैं। और भी इसका एप्लीकेशन है। सो दिस आर द एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई यू शुड यूज़ दैट वन। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर पीपल, अच्छा दिस वन इज कमिंग, अच्छा ओके, नाउ इट इज़ कमिंग अबाउट विच वन ना, पीपल टेकिंग सॉल्टी फूड। ये कुछ एविडेंसेस है जो आपको अभी यहाँ पे लर्न करने हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। एक्चुअली people taking salty food experiencing water retention in the tissue and intercellular spaces due to osmosis। अगर मान लो सॉल्टी, अब जैसे जिसका प्रेशर हाई है या जिसका एडिमा, एडिमा किसको बोलते हैं ना, पफिंग और स्टोरिंग ऑफ वाटर इन द टिश्यूज और द सेल, दैट इज कॉल्ड एडिमा। मतलब वो स्वेलिंग हो जाता है पैर में या हाथ में, है ना, जिसका स्पेशली किडनी का प्रॉब्लम है या प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्टी फूड को माना करते हैं। क्यों करते हैं ना, सॉल्टी फूड अगर ज़्यादा हो सेल में तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा, है ना। सॉल्यूशन अगर सॉल्टी है, सॉल्ट डिपोजिट हो जाए किसके अंदर, सेल के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पानी और वाटर विल बी फ्लोइंग इनसाइड द सेल एंड मेकिंग द पफिनेस इज कॉल्ड द एडिमा। रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे ना, इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। मान लो जो हम लोगों ने अभी समझाया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ दिस वन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ दिस वन। अगर मान लो कि अगर आप कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हो दैट इज़ मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, so osmosis will be occurring in reverse condition, means now the water will be coming from where to where, from solution to solvent. This process is called reverse osmosis. Okay, so now it is coming that it is a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, then the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis. It is used for desalination. वो भी हम दिखाएंगे desalination किसको बोलते हैं। तो अच्छा नेक्स्ट वन, ऑस्मोसिस ब्लड। अच्छा यहाँ पे कुछ कंडीशन दिखा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। Through osmosis, blood cell collapse due to loss of water when placed in water containing more than 0.9% सॉल्यूशन मास बाई वॉल्यूम। मतलब 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर आप ब्लड सेल को रखोगे तो क्या हो जाएगा ना, ब्लड सेल से वाटर विल बी लूजिंग, ब्लड सेल विल बिकम स्ट्रिंग एंड कोलैप्स। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट्स एंड it is subsequently into the upper portion of the plant due to the osmosis, है ना। preservation of the meat by salting and fruits by adding sugars and protects against the bacterial function। क्योंकि बैक्टीरिया जब वो सॉल्ट और शुगर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, बैक्टीरिया से पानी निकल जाएगा ड्यू टू सॉल्ट एंड शुगर। तो दैट्स वाई थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और शुगर्ड फ्रूट लूजेस वाटर, श्रिवल एंड ड्राइज। ठीक है, तो ये दिस इज द वे बाय व्हिच वी कैन kill the bacteria by preserving the meat by salting it and fruits by adding sugar। तो जब शुगर और सॉल्ट के ऊपर ये बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया से पानी निकल जाएगा एंड बैक्टीरिया विल डाई। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक एंड द वन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, है ना, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। ठीक है, दोनों की सपोज इसकी कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या सेल को अगर कोई सेल को अगर आप कंसंट्रेशन में रख रहे हो तो एट दैट कंसंट्रेशन अगर सेल से ये ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया ये। तो एट दैट कंडीशन व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ, द सेल से पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जैसे किशमिश वगैरह बनते हैं
और नेक्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक। क्या हो जाएगा ना, अगर सेल से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, किसकी, बाहर की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या हो जाएगा ना, द वाटर विल बी एंटरिंग इनटू द सेल। जैसे हम किशमिश को पानी में रखते हो तो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। और यहाँ पे किशमिश बनते, मतलब ग्रेप्स को अगर आप चश्मे में रखोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेप्स क्या हो जाएगा किसमें ना, किशमिश में बन जाएगा। तो ये हो गया कंडीशन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक मतलब दोनों का ही सेल और जैसे 0.9%, 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर आप सेल, ब्लड सेल को रखोगे तो क्या हो जाएगा ना, ब्लड सेल, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आइसोटोनिक हो गया। ओके, नेक्स्ट वन यू आर कमिंग advantage of the osmotic pressure method. What is the advantage here? Pressure measurement is around the room temperature में होता है ये, and molarity of the solution is used instead of molality। ये सब बेनिफिट है, इसका एडवांटेज है कि मोलालिटी हम यूज़ नहीं कर रहे। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मोलारिटी यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में हम कर रहे हो, इट इज़ द मैग्नीट्यूड इज लार्ज, एवर इन द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा आएगा, तो आपको कैलकुलेशन में इजी आएगा। इट इज़ यूजफुल फॉर द बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि हम इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करते हैं और बायोमोलिक्यूल क्या होता है, हायर मॉलिकुलर मास के साथ, और नॉट स्टेबल होता है हायर टेम्परेचर में। एंड पॉलीमर्स, जिसके पास पोर सॉल्युबिलिटी है, तो पॉलीमर्स या बायोमोलिक्यूल्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड है मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने का, क्योंकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होता है और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये हायर टेम्परेचर में क्या हो जाता है, रिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नॉट स्टेबल। एंड पॉलीमर्स हैव पोर सॉल्युबिलिटी। तो एट दैट कंडीशन इन लोगों, इन चीज़ों के लिए, बायोमोलिक्यूल्स के लिए, पॉलीमर्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ना, टू फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ठीक है, अभी क्या होगा, डिसलिनेशन। कैसे डिसलिनेशन होता है ना, यहाँ पे सॉल्ट वाटर, क्योंकि जहाँ पे स्क्रैसिटी ऑफ वाटर है तो वहाँ पे क्या होता है, ये डिसलिनेशन जो प्लांट बनता है और जिसमें क्या होता है ना, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर वी कैन मेक। सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द, ये प्रोसेस कौन सा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें हम क्या करेंगे ना, जो पाई है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, किस साइड डालेंगे, सॉल्यूशन के साइड डालेंगे। तो नाउ अभी क्या होगा, नॉर्मल अगर कुछ प्रेशर नहीं डालते, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में पानी चले जाते। लेकिन जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा दे रहे हो तो नाउ द वाटर विल बी कमिंग फ्रॉम व्हिच वन, सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर, एंड वी कैन कलेक्ट इट। तो ये सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर निकल के वी कैन मेक इट यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर वाटर बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला है ना, प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सी वाटर इज अप्लाइड, pure water passes through the semi-permeable membrane, leaving dissolved salt ions and other impurities behind। जो salt या impurities है यहाँ पे रहेगा, और ये जो semi permeable membrane SPM के थ्रू क्या हो जाएगा, water from the salt water is passing and storing in the fresh water or as a pure water। तो ये this method of purification is actually boon for the regions where fresh water is स्क्रैचली अवेलेबल, मतलब है ही नहीं या अवेलेबल नहीं हो पा रही, उस कंडीशन में आप सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर को कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसैलिनेशन। इसमें किसकी इंपॉर्टेंस है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्यों हम यूज़ करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, वाई द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट द, क्योंकि मॉलिकुलर मोलर मास तो आप दूसरे से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे ये बात है कि हम मोलैरिटी को यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड जो है ये लार्जर है, तो डेफिनेटली आपको एक कैलकुलेटिव वैल्यू मिल जाएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर एबनॉर्मल मोलर मास। अच्छा, ये वन एक्चुअली एग्जाम्पल इज गिवन हियर। सो व्हाट इज एग्जाम्पल हियर, द कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 milliliter of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर आप फाइंड आउट कर दो तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है ना, गिवन है आपके पास, तो पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास C का मतलब क्या है, N/V, और RT। तो N यहाँ पे दे के रखा है, आपको मोल्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो N क्या 1 ग्राम दे के रखा है ना, तो 1 ग्राम, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे के रखा है आपके पास, अच्छा ना 1 ग्राम, और उसकी मोलर मास दे के रखा है 185,000 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे अच्छा ये तो हो गया आपकी। अच्छा आर का वैल्यू है 8.314, इसको आपको ये है 8.314 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये किलो पास्कल है ना। आर की वैल्यू है 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, है ना, पर केल्विन पर मोल। तो 8 किलो पास्कल, तो इसमें हमें किसका क्या करना है ना, पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद आपके पास क्या है टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर यहाँ पे क्या देके रखा है 37, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 37 + 273, दैट मीन्स इट इज कमिंग यहाँ 37 3, तो दैट मीन्स 310 केल्विन, है ना। तो 310 केल्विन हो गया ये, तो 310 केल्विन इंटू 310 एंड डिवाइडेड बाई इज कमिंग हेयर, व्हाट इज द लीटर इज कमिंग हेयर, इट इज कमिंग 450, तो 450 मिलीलीटर। तो 450 मिलीलीटर को आपको किस में कन्वर्ट, क्योंकि वॉल्यूम किस में है लीटर में, बाई 1000, इसका मतलब क्या है ना, इसको आपको कैलकुलेशन करोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगा इधर 30.96 पास्कल। ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास फॉर द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग एसोसिएशन डिसोसिएशन। मान लो कोई आप सॉल्ट ली, इलेक्ट्रोलाइट ली हो, तो क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल KCl मान लो, पोटेशियम क्लोराइड, तो डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें या कोई एसोसिएट हो रहे, कंबाइन हो रहे, डाइमार हो रहे या ट्राइमार हो रहे, इन दैट कंडीशन मॉलिकुलर मास डिटरमाइन फ्रॉम द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफर हो रहे। जब 1 से 2 हो रहे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो रहे, ठीक है। तो आइदर लोअर और हायर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। जो आपको जो मोलर मास आएगा तो वो नॉर्मल मोलर मास नहीं आएगा, आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये डिपेंड होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो जाए तो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे तो क्या हो जाएगा ना, मोलर मास कम हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मतलब अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो रहे, कब ज़्यादा होगा ना, जब डिसोसिएट कंडीशन में आएगा, है ना। KCl डिसोसिएट हो गया K+Cl- में, एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और भी कम हो गया। मतलब 2 मॉलिक्यूल मिला के 1 मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और भी कम हो गया, मतलब नंबर कम हो गया, नंबर कम हो गया तो मॉलिकुलर मास डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लीड टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एसोसिएट हो रहे हैं ना इन सॉल्यूशन, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। देयरफॉर अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएगा तो हायर वैल्यू ऑफ मोलर मास देन द नॉर्मल वैल्यू। एक एग्जाम्पल आपके सामने इधर दे देते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है ना, एसिटिक एसिड, है ना। फॉर्मूला क्या है CH3COOH। तो ये जब आएगा तो 2 CH3COOH मिला के क्या हो जाएगा ना, CH3 डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। डाइमर कैसे होगा ना, यहाँ पे आप देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगेन इधर से आप ले लो CH3 C, है ना, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O दे दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों मिला के एक फॉर्मेशन हो गया डाइमर की। तो जब डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा तो एक्चुअली CH3COOH की मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा ना, इट इज कमिंग 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1, है ना। तो इधर 15 + 32 + 1 33 + 12, तो कितना हो गया 3255 3141 एंड इट इज कमिंग दिस है 6, है ना। तो 60, तो मोलर मास कितना हो गया 60। बट जब आप डाइमर फॉर्मेशन हो गए तो 2 मॉलिक्यूल मिला के, मतलब 1 मोर CH3COOH, है ना, प्लस CH3COOH, दोनों मिला के 1 हो गया। एक में क्या डाइमर फॉर्मेशन, एक 1 मॉलिक्यूल ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो दोनों क्वालिटेटिव, दोनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। तो डेफिनेटली इसका कम जब हो गया, इसका मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको मॉलिकुलर मास नाउ 120U इंस्टेड ऑफ 60U। अभी और 60U नहीं दिखाएंगे डाइमराइजेशन के बाद। तो ये एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा मॉलिकुलर मास आ जाएगा, तो डेफिनेटली नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आएगा, इट इज़ एबनॉर्मल। वन मोर कंडीशन KCl,
ये डिसोशिएट हो जाएगा के प्लस एंड Cl माइनस में। तो अभी क्या हो गया देखो, एक था मॉलिक्यूल कितने में, 2 आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नाउ मोर एंड दैट्स व्हाई द मॉलिकुलर मास विल बी कमिंग लेस, मोलर मास विल बी कमिंग लेस। तो कितना मिलेगा इसकी मोलर मास 37.25, जबकि इसका मोलर मास क्या है, KCl का मोलर मास आ जाएगा 39 प्लस 37.5, दैट मीन्स इट इज कमिंग क्या आ रहा है, it is coming about the 74, 795, 33, sorry 35.5, sorry, it is coming 4 and 336 is 74.5. Okay, so normally क्या आ रही है 74.5, but जब आप मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर रहे हो, क्योंकि ये डिसोसिएशन कंडीशन है, तो इसकी मॉलिकुलर मास इज कमिंग लेस, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इन द सेंस एबनॉर्मल, दिस इज ऑल्सो इन द सेंस एबनॉर्मल, है ना। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू अप्लाई वन फैक्टर दैट इज कॉल्ड वैन टॉप फैक्टर, है ना। वैन टॉप फैक्टर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई आई। इसको आई कैसे रिप्रेजेंट, तो ये फाइंड आउट कैसे होगा ना, आई का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली ये आई कैसे हम किस चीज़ के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे ना, हाउ मच इज डिसोसिएट, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हुए इसको फाइंड आउट करना है, तो आपको आई की वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द आई। सो आई कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, अगर मोलर मास है तो नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, ओके। और अगर आपके पास आई और भी तरीका है कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा किसके हिसाब से जुड़े हुए हैं कि नंबर, है ना, बाई कैलकुलेटेड वैल्यू, बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। ये है दूसरा तरीका, जो आपके पास अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन, जैसे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसके टाइम आपको समझ में आ जाएगा। एक तो मोलर मास अगर अवेलेबल है तो नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अवेलेबल है तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस कंडीशन में तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कोई सा भी एक, इधर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रही पार्टिकल्स की, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, है ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन बिफोर। तो ये जो रेशियो है, ये 3 फॉर्मूला है जिसके थ्रू यू कैन फाइंड आउट द आई, एंड व्हेन वी नीड द आई, when we have to find out the molar mass of in case of association or dissociation, okay।